Greeting to you all in the mighty name of Lord our Savior Jesus Christ. और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। So I thank God for this opportunity that God has given to me to stand before you with His living word. और उसके जीवित वचन को लेकर के आपके सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। So as I was, before going to the message, let me share just a small story, not story, a joke. और एक चुटकुला आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वचन में जाने से पहले। It may be somewhere related to my message. वो मेरे जो संदेश से जुड़ करके हो सकता है। So in these days we know that because of this COVID-19 and everything is changing. और इस कोविड-19 के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो बदल रही है, even schools, colleges and all starting online classes, mobile classes, even TV classes in the TV, lot of things. और उस कोविड-19 के कारण जो स्कूल की है, जो कॉलेजेस है, कहीं जो इसकी जो अध्ययन जो शिक्षा है वो मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा होने जा रहा है। So related to that, I was just reading a joke. और उससे ताल्लुकात रखते हुए मैं एक चुटकुले को पढ़ रहा था। One boy was talking to his father. और एक बेटा अपने पिता से बात करता है। So he was telling, Papa, do you know one thing? पिताजी आपको एक बात मालूम है? One day I took my mobile to my school. और एक दिन मैं अपने मोबाइल को स्कूल में लेके गया था। But my teacher told, hereafter no mobile in the school. और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद से अभी कोई मोबाइल स्कूल में नहीं होना If चाहिए। you bring the mobile in the school, you will be out of the school. अगर अभी दोबारा अगर मोबाइल स्कूल में लाया तो स्कूल से बाहर कर दिया But जाएगा। now what is happening, Papa? Now school is in the mobile. लेकिन पापा अभी क्या हो रहा है कि स्कूल अभी मोबाइल में आ गया है। ये बहुत पुराना जोक था इसलिए कम See, हंसे। somewhere I was thinking, when I read that one, I was thinking something else. That is my point. और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे एक मुद्दा जो मेरा है वो याद आया। Many times when we were having lot of opportunity, not about, I'm talking generally. और सामान्य तौर से जब जो मौके हमें कई मिलते हैं उसके बारे में बताना When चाह रहा हूँ। people had lot of opportunities go to the churches, और जब लोगों के पास में कलीसिया में जाने के बहुत सारे अवसर थे, they were not, many times for a small excuses, they were not going churches. और छोटे से बहाने के कारण या छोटा सा कारण के कारण वो लोग कलीसिया में या चर्च में नहीं जाते थे। Even when I remember my churches and all, many times I hear many believers, when the pastor asked why you didn't come and all, they used to say, I felt like a headache. No headache, felt like a headache. Then I thought it was something lot of like these excuses. और मेरी कलीसिया में भी जब मैं देखता हूँ कि कई बार जब पासवान पूछता है किसी विश्वासी को कि आप क्यों नहीं आए, तो इस प्रकार से कारण बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर में दर्द है, चाहे वो सिर में दर्द हो या ना हो। So like that, now what is happening? God thought, okay, we will close the church, let them sit in the homes. और इस कारण से परमेश्वर ने सोचा कि ठीक है, अभी जो चर्च को बंद कर देते हैं, अभी घरों में बैठने दो। All are happy, no one wants to go to, so now all those who didn't want to go to church, I think they are happy maybe. और जो चर्च नहीं जाना पसंद करते थे वो लोग अभी तो ज्यादा खुश हो सकते हैं। So when I was thinking all of these things, so I thought what I will speak this evening. और ये सब बातों को जब सोच रहा था तो मैंने सोचा कि आज शाम के समय में क्या प्रचार करूं। Many thoughts were coming to my mind. और बहुत से विचार मेरे मन में आ रहे थे। And even I was thinking, as we are discussing on the theme Kingdom of God, I thought I will talk something related to that. और फिर मैंने सोचा कि जो कि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा। But when I was going through some of the notes, all these things and all, suddenly one passage or one story struck me. और जब मैं अपने नोट्स में से और जो अध्ययन में से जा रहा था तो मुझे एक जो बात मेरे मन में जो ज्यादा असर डाली। So I'm going to share from that story. और उस कहानी से मैं आप लोगों के सामने बांटूंगा। But the story is very, very familiar to all of us. और लेकिन वो जो कहानी हम सभी से बहुत ही सुपरिचित है। And we have learned even from our Sunday school. हो सकता है हमने हमारे संडे स्कूल में भी उसको सीखा होगा। I want you to guess the story. I will give you one clue. और मैं आपको एक छोटा सा जो क्लू दूंगा, आपको वो पहचानना है कि वो कहानी कौन सी हो सकती है। Okay, I will give you two clues. दो आपको अंदाजे दूंगा मैं। First is the stories from the Gospels. और ये जो कहानी है वो जो सुसमाचार पत्रों में से है। And the another clue is this
the speciality of story is this story we can find in all four Gospels. और ये जो कहानी की विशेषता ये है कि चारों सुसमाचार की पुस्तकों में पाई जाती है। Anyone? Any guess? कोई अंदाजा लगा सकता है? This story can be found in four Gospels. I think that is only one story in four Gospels. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी वो सारे जो 4 पत्रों में है। Wait, sir. Let me check others. Wait. Let me check others, students and others, teachers. Just wait for a moment. I thought everyone will shout. मुझे लगा सब चिल्ला के बोलेंगे। Okay. Anyway, I think. सभी 4 पत्रों में है, 4 Yes, sir. सुसमाचार। Some is right. 5,000 and Jesus feeding 5,000. और प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को भोजन प्रदान करता The है। story of 5 loaves and 2 fish. और 5 रोटी और 2 मछलियों के बारे में ये कहानी। So I think the feeding of 4,000 that can be seen in 3 Gospels. और जो 4,000 लोगों को भोजन प्रदान करना वो 3 जो सुसमाचार पुस्तकों में हम देख सकते हैं। So today I am going to speak from the Gospel of Mark. Gospel of Matthew. और मत्ती रचित सुसमाचार से मैं आज आपके मध्य में बोलना Someone चाहूंगा। please help us reading Matthew chapter 14 verses 13 to 21. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 13 से लेके 21 आयत तक कोई पढ़े Someone मध्य। please read in Hindi. हिंदी में पढ़कर कोई मदद Matthew करे। 14 13 to 21. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 13 वचन से 21 वचन तक। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया और उनके बीमारों पर चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। Thank you. धन्यवाद। The same story can be seen in Mark 6 verses 30 to 44. और वही जो समान कहानी जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय में हम देख सकते हैं। Luke 9 10 to 17. और लूका रचित समाचार उसका 9 का 10 से 17 तक हम देख सकते हैं। John 6 verses 1 to 13. और यूहन्ना उसका 6 उसका 1 से 13 तक देख सकते हैं। There are differences in these 4 stories. और इन चारों कहानियों में थोड़ी भिन्नता है। In Matthew, it is Jesus alone or going in the boat in a solitary place. और इन दिस बुक In the Matthew. और मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अकेले जो है वो नाव में जा रहे हैं। That it seems like that from the reference there. और जो वहाँ पे आयतों से इस प्रकार से आभास होता है कि ऐसा लिखा है। But in Mark, it is they went, means that Jesus and disciples went by a boat to a solitary place. और लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार में हम इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले जो है एक एकांत वाले जगह पर नाव में बैठ करके गए। Then in Mark and Matthew, in both places we see Jesus, before Jesus reached there, the crowd reached there. और मरकुस और मत्ती में हम इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु के वहां पर पहुंचने से पहले भीड़ वहां पर एकत्रित है। And even in Luke, we see Jesus is taking the disciples along with him. और लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को अपने साथ में लेके जा रहे हैं। But there we don't see any boat or any solitary place. It is very clearly is in the Luke is writing, Jesus took them to a town called Bethsaida.
और लेकिन लूका रचित सुसमाचार में हम वहाँ पे कोई एकांत वाली जगह नहीं देखते, ना वहाँ पर हम नाव देखते, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि बेतसैदा नाम का एक शहर। But when we come to the John, again some other differences. लेकिन हम जॉन के यूहन्ना के जो सुसमाचार में हम आते हैं तो वहाँ पे और एक अलग बात है। Jesus is crossing the Sea of Galilee. यीशु वहाँ पर जो गलीली की जो झील को पार करके जाते हैं। Otherwise, again it is written in the John chapter 6 that it is called Sea of Tiberias. और यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है कि वो जो तिब्रियास की जो झील थी। There we see again the name of Andrew is mentioned, who is finding that young guy. और वहाँ पर उसमें इस प्रकार से दिखाएगा कि जो अंद्रियास है उसने उस व्यक्ति उस बालक को खोज निकाला, ढूंढ निकाला जिसके पास में रोटी थी। So there are a lot of differences in these four stories when we compare. और जब हम इन चारों जो समाचार की पुस्तकों का जब तुलना करते तो थोड़ा कई भिन्नताओं को हम देखते I'm हैं। not going to share why there's differences. I do not know also. So that's not my message. और मैं नहीं जानता कि वो इतना अंतर क्यों है और मैं वो बताना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा संदेश नहीं है। If you want to know more about Stephen sir and Grace sir are there, so you can contact them later. और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे मध्य में स्टीफन सर है और ग्रेसन सर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। And there are some similarities also in these four stories. लेकिन इन चारों कहानियों में जो समानताओं को भी हम देख सकते हैं। In Matthew, Mark and Luke present the story soon after the story of beheading of John the Baptist. और मत्ती और लूक और मार्क में हम देख सकते हैं कि जो यूहन्ना को जो सिर कलम करने के बाद में इस बात को हम देख सकते हैं। Even another thing that even Jesus, the context is that the 12 disciples, Jesus sent them out and they came and reporting what all they have done. After that, this incident is happening. और जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो 12 चेलों को भेजा सेवकाई के लिए और वो उसके बाद में वापस आकर के जो अपना जो रिपोर्ट देते हैं उसके बाद में हम इस घटना को देखते So हैं। in these three gospels, Matthew, Mark and Luke, this story is just following the talk of beheading of the John the Gospel. So John the Baptist, somewhere we feel this is the same story. और जब हम तीनों ही सुसमाचार पत्रों में हम जो पुस्तकों में हम देखते हैं लूका और मार्क और जो मती में कि यूहन्ना के जो सर कलम के बाद में से ये कहानी उससे मिलकर या उसी में है सम्मिलित, इस प्रकार से आभास होता है। The another similarity is in these four stories, loaves are 5 and 2 fish. और इस समानता ये देखते हैं कि इसमें 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। In Matthew, Mark, Luke, John, the same. और चारों ही जो पुस्तकों में सुसमाचार की पुस्तकों में जो रोटियां और मछलियां समान हैं। The another similarity, Matthew, Mark, Luke, John, all of them are saying that leftover they have collected 12 full baskets. और चारों ही सुसमाचार पत्रों में जो मती, लूक और यूहन्ना और मार्क में चारों ही पत्रों में जो सुसमाचार पत्रों में इस प्रकार से बताया गया कि 12 खाने के बाद में जो बच गई टोकरियां वो 12 थी। But another similarity in Mark and John mentions yes, some kinds of 8 months wages which is not sufficient for the buying of food for these people. और मार्कुस रचित सुसमाचार और जो यूहन्ना की पुस्तक में इस प्रकार से कहा गया है कि इनके लिए भोजन जो खरीदने के लिए उतना जो धन या उतना पैसा उनको पर्याप्त नहीं होगा। And the another thing, the last similarity that in the 4 gospels very clearly it says those who had were 5,000 men. और चारों ही सुसमाचार पुस्तकों में इस प्रकार से बताया गया कि खाने वाले पुरुष मात्र 5,000 थे। So with all this similarity also I don't want to tell whether it is one story or different stories. और इन सब समानताओं के कारण मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि वो कहानी अलग थी या वो एक ही थी, Because that is not my point. क्योंकि वो मेरा बिंदु नहीं है। I just wanted to take some of the things that from this passage or this story which provoked my thoughts. और जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जो पद्य से जो बातों ने मेरे मन को खगोल दिया उस बातों को आपको सामने रखना चाहता Somewhere हूँ। I take it as a one story, so I will be comparing the things together. और मैं इसको एक कहानी के रूप में लूंगा ताकि सभी को एक समानता में ला In पाऊं। this evening I want to present 3 things three factors which we can see from this story which contributed that miracle of this feeding of 5,000. और यहाँ पर हम 3 ऐसे जो योगदानों को हम देख सकते हैं जिसके माध्यम से इतने लोगों को जो भोजन जो प्रदान किया जा सका। It is very true that
Jesus is the one who performed that miracle. और ये बहुत सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस चमत्कार को किया, And we all believe that one. I am not nullifying that fact. और उस जो सच्चाई को मैं वहां पे जो खारिज नहीं कर रहा हूँ। But somewhere when we study very closely this text, और लेकिन जब हम इसको जो बहुत ही गहराई से इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, there were lot of factors which contributed for that miracle in that story. और कई ऐसी सच्चाइयां यहाँ पर है जो इस कहानी को आगे या सच में ला सकी। In this story, we can see three aspects or otherwise three persons, three people. और यहाँ पर हम तीन प्रकार के लोगों को या तीन लोगों को हम देख सकते हैं खास So तौर से। one, the crowd. पहली तो भीड़, Then second is Jesus. और उसके बाद में यीशु मसीह, And third is the disciples. और उसके बाद में तीसरे जो है वो चेले। By taking these three groups of people, I just want to bring out some of the factors, some of the things that contributed this miracle. और इन तीन जो समूह के लोगों को लेकर के मैं यहाँ पे जो तीन सच्चाई हैं उनको आपके सामने रखना The चाहूंगा। first thing, the crowd, how this crowd became a factor, or otherwise, how this crowd contributed for this miracle. और किस प्रकार से भीड़ ने जो अपना योगदान दिया इस चमत्कार को होने के लिए। So when we read this story, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, in all somewhere we see this crowd had a heart for God or God's presence. तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इस भीड़ में लोगों को परमेश्वर के प्रति एक मन या एक जिज्ञासा थी। Very clearly we can see a kind of passion or zeal or a kind of longingness in the heart of these people to go and meet the Jesus. और एक प्रकार की जिज्ञासा, एक प्रकार का जो ललक लोगों के मध्य में परमेश्वर को मिलने के, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के प्रति उनके मन में थी। This Matthew, Mark, Luke is not giving the reason why the crowd is following. और मार्कुस और लूक और मती वो कारण नहीं बता रहे कि जो भीड़ उसका अनुसरण क्यों कर रही है। But John is very clearly say that they are following because they have seen the miraculous signs, and that's the reason. और लेकिन यूहन्ना इस प्रकार से कारण बताता है कि उन्होंने चिन्ह चमत्कार को देखा, इस कारण से यीशु मसीह का अनुसरण वे लोग कर रहे हैं। Even some people say the people were always following Jesus because of food or because of all in feeding. और लोग कई इस प्रकार से बोलते हैं कि लोग तो हमेशा लगातार उसका अनुसरण करते थे क्योंकि उनको वो खाना खिलाता था या उनकी देखभाल करता But था। in this context it may not be true लेकिन इस संदर्भ में भी ये सच नहीं हो सकता है, because this is the first feeding. क्योंकि ये तो पहली बार खिलाना है। So I think this is the first feeding of Jesus. So in this written in the gospel, in that way we cannot take that these people were following for that. क्योंकि पहली बार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खिलाया है, तो उस कारण से हम बोल सकते हैं कि लोग जो बोलते थे कि खाने के लिए लोग यीशु मसीह का अनुसरण करते, तो वो बात झूठी साबित होती Even है। all other gospels, the feeding of 4,000 comes after that only. क्योंकि जो अन्य जो सुसमाचार के पत्रों में हम देख सकते हैं कि 4,000 लोगों को खिलाना ये इस घटना के बाद ही हुआ है। For whatever the reason, the crowd had a heart or longingness to meet or to go to Jesus. लेकिन कारण कुछ क्यों ना हो, लेकिन लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए एक जिज्ञासा थी, एक ललक थी। He very clearly, Matthew and Mark present Jesus and other disciples went to a solitary place by a boat. और जो मरकुस और मार्क इस प्रकार से बोलते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले जो है नाव में एक एकांत वाली जगह में गए। But then they say the crowd followed on foot. लेकिन हम देखते हैं कि जो भीड़ जो है उनके कदमों को देखते हुए उनका अनुसरण किए। Even Mark is very clearly says, और मरकुस जो वो बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है, the people ran on foot. लोग उनके कदमों की आहट को सुन करके या उनके ताल में ताल मिलाते हुए गए। Run on foot means they run in a way. वो एक प्रकार से दौड़ते हुए उनके पीछे गए। Where Jesus and his disciples went by a boat, जहाँ यीशु मसीह और उसके चेले नाव में गए, the crowd they run to the spot. लेकिन भीड़ जो है वो दौड़ करके जा रहे हैं उनके They पीछे, went by walk. वो चल करके गए। It shows that somewhere they had an earnest desire to go to the presence of Jesus. ये वो बात दिखाता है कि कैसे भी करके उनके अंदर वो जिज्ञासा थी कि प्रभु यीशु मसीह को मिल ले। The second thing from the side of people, we see in the John mentions that Jesus went a far shore of
the Sea of Galilee. वो जो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना जो इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो गलील के जो झील है उसके पार हो गए। So it was a long distance maybe. हो सकता है अंदाजा लगाए कि वो बहुत ही लंबी दूरी हो, But still, the interesting thing that लेकिन मजेदार वाली बात यह है, Mark is telling, मरकुस इस प्रकार से कहता है, when Jesus landed and saw, और प्रभु यीशु मसीह जब उस okay, but many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. और जब लोगों ने इस प्रकार से देखा तो वे दौड़ करके उनसे पहले वो वहां पर पहुंच गए। See, very interesting. बहुत ही मजेदार बात, Where Jesus and disciples in a far place where they went by boat, जो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो है वो जो नाव से दूर जगह पर गए हैं, the crowd from the towns, they by walk they reached before. When Jesus went, in Mark and Matthew says, when Jesus went there, reached there, he saw the crowd already there. और जो मरकुस और लूका इस प्रकार से बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को पहले ही वहां पर पहुंचते हुए देख लिया। So it very clearly tells that they had some kinds of longingness to reach by to the presence of God. तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो भीड़ है उनके अंदर एक जिज्ञासा है, उनके अंदर एक ललक है कि वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी करके देखें। The another thing we see, और एक बात को हम देखते it हैं, was a very clearly we see it was a solitary place. और हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से कि वो एक एकांत वाली जगह थी। Then the disciples are coming and telling it is a remote place. और जो चेले लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं कि एक तो बहुत ही सुनसान वाली जगह है, John is telling it is at the far side of the Sea of Galilee. और यूहन्ना इस प्रकार से बोल रहा है कि ये कि जो झील के बहुत ही दूर ये स्थान है। And even John is telling Jesus went on a mountainside and sat over there. और यूहन्ना इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर जो पहाड़ पर जाकर के वहां पर बैठ गए। A solitary place, a remote place, एक somewhere very far in a mountainside. और एक जो पहाड़ी क्षेत्र में जो एकांत भरी सुनसान वाली जगह, People walked and went there. और लोग वहां पर चल करके वहां पर गए। Means they were taking the risk to reach there. और इसका मतलब ये कि किसी भी प्रकार से वहां तक पहुंचने के लिए वो चुनौती स्वीकार कर रहे These थे। people were not only having a heart for reaching there, but even they were ready to take the risk to reach there. और ये लोगों के अंदर केवल इतना ही जिज्ञासा या उनके मन में इतना ललक नहीं था कि वहां पे पहुंचना, लेकिन कैसे भी करके वहां पे उनको पहुंचना ये उनके मन में था। Nothing was a hindrance before them to reach in the presence of Jesus. और प्रभु की उपस्थिति में जाने से उनके लिए कोई भी इस प्रकार का रुकावट न था। And thirdly, we see something. और तीसरी बात को हम वहां पे कुछ देखते When हैं। Jesus saw them, he began to had a compassion and he began to teach them. और प्रभु यीशु मसीह उनको देख करके उनके ऊपर तरस खाते हैं, उनको सिखाते हैं, And he healed their sick. और उनके जो बीमारी से उनको चंगाई देता है। But when evening came, लेकिन जब संध्या या शाम का समय हुआ, शाम हुआ, disciples are coming and telling to Jesus, तो चेले लोग आकर के यीशु को बोलते हैं, Jesus, you send them away. प्रभु आप उन्हें वापस विदा कीजिए, This is a remote place. ये तो एक सुनसान जगह है। Let them go surround the place and have something. और आसपास की जगहों में जाकर के उनको कुछ न कुछ खाने की अनुमति दो। Means from the morning till evening, these people, the crowd, they are not at all bothered. They are still sitting in the presence of Jesus and listening to His words. इसका मतलब है कि सुबह से लेकर के शाम तक करके आ करके वो प्रभु का वचन को सुन रहे, कोई किसी बात की परवाह नहीं कर रहे They हैं। never bothered whether they want to go to home or they wanted to eat. और उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं किया कि उनको खाना है या उनको घर जाना है। But they were still earnestly listening to Jesus' words. और लेकिन वो बड़ी तीव्रता जो जिज्ञासा से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे। It is disciples who are coming and telling Jesus, you send them away. ये तो बात ये है कि जो चेले लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में आके बोलते हैं कि प्रभु इनको आप विदा कीजिए। So here we see this crowd, the speciality of this crowd was not only they had a longingness or heart for God. और यहाँ पर जो भीड़ की जो झुंड की भीड़ की हम विशेषता ये देख सकते हैं कि उनके अंदर प्रभु परमेश्वर के प्रति एक जिज्ञासा थी। Not only they were ready to take the all kinds of risk to reach in the presence of और God, कैसे भी करके वो एक जिज्ञासा थी कि कैसे भी करके वो प्रभु के पास में पहुंच जाए। but also they were ready to sacrifice their time, their food and all things to be in the presence of लेकिन उससे Jesus. बढ़ करके वो उनके पास में ये था कि वो अपने भोजन को और सब कुछ को उसके उपस्थिति में बने रहने के लिए त्यागना चाहते When थे। they were in the presence of God, they forgot all those और things. जब वो प्रभु की उपस्थिति में थे, सब वो कुछ को भूल गए। That is the first thing we can see the crowd about the crowd. और ये वो बात है, पहली बात जो हम भीड़ के प्रति हम देख सकते So I हैं। will come back to that, but the second
we can see in this story is Jesus Christ. और जो दूसरे जो व्यक्ति हम देख सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह। So we here see the Jesus. और यहाँ पर हम यीशु को देखते हैं। Why they went to the solitary place? Mark is giving very clearly the reason. और जो मरकुस है वो स्पष्ट कारण दे रहा है कि क्यों वो एक एकांत वाली जगह में गए। Mark 6:31. और मरकुस उसका 6 उसका 31। Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourself to a quiet place and get some rest." और वहां पर हम देख सकते हैं कि उसने उनसे कहा तुम आपस में अलग किसी स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का भी अवसर नहीं मिलता था। Jesus and his disciples had no time to eat, और प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को खाने तक का समय नहीं था no time to take rest. और विश्राम करने का भी समय नहीं था। That's why they thought to go a remote, a solitary place to have some rest. और इस कारण से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एकांत वाली जगह पर जाए और थोड़ा विश्राम ले But लें। before Jesus and disciples reaching the solitary place, the crowd is already there. लेकिन हम देखते हैं कि जो एकांत वाली जगह में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले के पहुंचने से पहले वहां पर भीड़ है। Then when Jesus landed, he saw the crowd and he had a compassion on them. और जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर भीड़ है और उनको देख करके उनके ऊपर उसको तरस आया, दया आई। He felt these are the people who are like sheep without shepherd. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो उसको ऐसा आभास हुआ कि ये वो भेड़े बिना चरवाए He के। felt that these people who are, there is no one to guide them. That is the reason they are looking after someone or running after someone. So Jesus forgot why they went over and he started to teach और them. वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये जो लोग इनका जो कोई अगवा नहीं है, कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, इस कारण से जिस कारण के लिए वो वहां पर गए थे वो उन बातों को भूल गया। Jesus did not go to teach the crowd there. वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा देने के लिए नहीं गया था। But when he saw the crowd, he forget everything and he started teaching the crowd. लेकिन जब उसने देखा उस भीड़ को कि वो सारी बातों को भूल करके वो भीड़ को सिखाने लगा। And also he started to heal the sick, those who are needed the healing. और जिनको चंगाई की आवश्यकता थी उनको वो चंगाई भी किया। And the another thing, the compassion of Jesus is very much clear that when the disciples came and told, send them away. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो तरस है, जब चेले आकर उसके पास में आकर बोलते हैं कि इनको विदा करो। Jesus telling that you give them something to eat. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको निर्देश देते हुए कहा कि तुम इन्हें खाना दो। Matthew and Mark very clearly says you give them something to eat. और मरकुस और मत्ती इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इनको खाने को दो। I feel these disciples who when they might have thought why we came and told this, we could have simply keep quiet. और मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि जो चेले लोग सिर पकड़ के हाथ से अपने सिर ठोक रहे होंगे, बोलेंगे क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के पास में इस बात को At लेकर के least गए। they felt some kind of concern for the people and thought this is a remote place, we cannot help in any way, let them go and have something. Jesus is telling you give them something to eat. वो उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि हम तो लोगों की चिंता करते हुए उनको विदा करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं कि आप इन्हें खाने को दो। Jesus' heart didn't allow, Jesus' compassion didn't allow these people to send these people empty to their homes. और प्रभु यीशु मसीह का जो तरस उनके ऊपर था उसने उन्हें अनुमति नहीं दिया कि वो भूखे पेट वापस लौट जाएं। The people who came to his presence with a longingness. और लोग जो एक भूख एक ललक के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पास में आए थे। The crowd who took the risk and reached in his place. और जो भीड़ ने एक चुनौती लेते हुए उस स्थान पे जो पहुंचे। The crowd who sacrificed their time and their eating and waiting on God in his presence. और जो लोगों ने अपने समय को और अपने भोजन को उसके लिए जो त्याग दिया उसके लिए Jesus didn't allow to send these people empty to their homes. और प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चाहा कि उनको खाली पेट भूखे पेट उनको वापस लौटाया जाए। This evening let me tell you one thing. इस शाम के समय में आपको एक बात बोलना If चाहूंगा। we are the people who are giving the importance to God's presence, और अगर हम प्रभु की उपस्थिति को अगर हम वो व्यक्ति जो महत्व देते we हैं, will really see the result in our lives. तब हम हमारे जीवन में सचमुच में परिणाम को देखेंगे। Surely we will have the God will have a special concern towards us. और हमारे प्रति प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जो चिंता करेंगे। And the third group of people here we can see, और तीसरे जो झुंड को हम देख सकते हैं यहाँ पे, that is the disciples. और वो है चेले। Here the disciples we see that they wanted to send these people away. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेले लोग चाह रहे थे कि ये लोगों को विदा किया जाए, But even in the midst of that, लेकिन उसके मध्य में भी when Jesus was telling them to something, but they were ready to
act upon that and obey upon that. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कुछ करने को कहा तो वो उनकी क्रिया या कुछ करने की बात को हम देख सकते So हैं। though the disciples knew that we cannot do in any, we cannot help these people in any way. और जैसे कि चेलों को पता था कि वो किसी भी प्रकार से उसकी उनकी मदद नहीं कर सकते But हैं, when Jesus said, "What you have?" लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे पास है, They didn't tell we have nothing. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, They told we have 5 loaves and 2 fish here. उन्होंने कहा कि हमारे पास पे 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। Or when Jesus told you go and see what you are having, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा कि जाओ देखो कि तुम्हारे पास क्या they है, went, they searched for it to find what is there among the crowd. हो सकता है कि वो ढूंढने गए होंगे कि भीड़ में से किसी के पास में कुछ है। Somewhere these people were ready to obey the words of Jesus, the disciples. और कैसे भी करके ये जो चेले लोग वो चाहत रखे थे या चाह रहे थे कि जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो करने के The लिए। another thing, when Jesus told you bring the 5 loaves, 2 fishes to me, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास लाओ, the disciple did not tell, what Jesus, what you will do with this one, we will not bring. और तब उस समय चेलों ने इस प्रकार से नहीं किया, क्या प्रभु इस 5 रोटी और 2 मछली से क्या कर लोगे? They took that 5 loaves and 2 fish to the presence of Jesus. और उन्होंने इस 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह के पास मिलाए। By holding that, Jesus told the disciples to make these people to sit in their groups. और उस रोटी और मछली को लेते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बैठने के लिए आज्ञा दिया एक झुंड में। I think maybe now the disciples might have really in the trouble. और अब हो सकता है कि अब तो सचमुच में जो चेले लोग दुविधा में आ गए होंगे। Holding 5 loaves and 2 fishes, Jesus telling to make these thousands of people to sit down. और 5 रोटी और 2 मछली को हाथ में लेते हुए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं 5000 लोगों को लाइन में बिठा दो। Disciples might have thought, if we make them to sit, and what we will give this, how can we give this 5 loaves and 2 fishes to this many people? और चेले लोग सोचने लगे होंगे कि ये 5 रोटी और 2 मछली होते हुए इन इतने हजार लोगों को कैसे खिलाएंगे, कैसे प्रबंध करेंगे। They even might have thought, it is my imagination, even they might have thought, if we make them to sit and if we are not able to provide, it may be a matter of shame to us. और ये मेरी कल्पना है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद चेले लोग इस प्रकार से सोच रहे होंगे कि अगर हमने इनको बिठा दिया और इतने लोगों को अगर नहीं खिला पाए तो हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण हो जाएगा। But still they obeyed, though it was logically or even beyond, it was even beyond their understanding. But when Jesus said to make the people to sit down, the disciples obeyed and they made them to sit down. चाहे ये उनकी समझ से बाहर थे, उनकी कल्पना से बाहर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो उनसे कहा करने के लिए उन्होंने उस भीड़ को उस प्रकार से बिठा दिया। And the another thing, after Jesus prayed for that, I'm not reading the verses because it is a familiar story to us. That's also the time is running. और समय का दौड़ने के कारण और जो ये जो कहानी हमें भली भांति हमें पता है, इसलिए मैं वचन में से नहीं पढ़ रहा हूँ। Finally, when Jesus took that loaves and fish in his hands and he thanked God and prayed and gave it to the hands of the disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और मछली को अपने हाथों में लेते हुए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए चेलों को दे दिया। And now Jesus telling you set it before the people who are sitting. और प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी में कहा कि जो बैठे हुए हैं, जो भीड़ है, उनको आप बांट दो। 5 loaves and 2 fish, thousands of people. 5 रोटी और 2 मछलियों को इतने हजार लोगों में बांट दो। They might have really struggle where to start, how to start. और शायद हो सकता है वो लोग संघर्ष करेंगे कि कहां से कैसे शुरुआत करें। But still, the disciples obeyed. They took that 5 loaves and 2 fish and started to set before the people, to distribute before the people who are sitting. और इतनी दुविधा के बाद में भी जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा है वो बांटने के लिए, उस आज्ञा को मानने के लिए, उस बात को मानने के लिए तैयार थे और उन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया। The miracle started there. वहां पर चमत्कार शुरुआत As हुआ they were distributing, it was started increasing. और जैसे वो बांटने लगे वो बढ़ने लगा। That is the reason I told that these 3 group of people contributed towards this miracle. और इस कारण से मैंने कहा कि यहाँ पर 3 जो समूह है, 3 झुंडों का योगदान है इस चमत्कार को होने Though के it लिए। was Jesus who performed the miracle, जो यहाँ पर यीशु मसीह था वो चमत्कार को करने के लिए, all these factors contributed. लेकिन इन सारे तत्वों ने इस चमत्कार को होने के लिए योगदान दिया। Because why did Jesus do the miracle? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया? Because he had a compassion towards his people. क्योंकि उसको लोगों के प्रति तरस था। Why Jesus had a compassion towards his people? और क्यों लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह को तरस था? Because Jesus saw these people. क्योंकि यीशु ने उन लोगों को देखा। Jesus saw the heart, the loneliness for his presence. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन को, उनके हृदय को देखा जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनके अंदर थी। Jesus have seen the struggle they have put together, the efforts they have put together to reach the place where they are now. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके संघर्षों को देखा, उनके जो परेशानी को देखा कि वहां तक वो किस प्रकार से पहुंच पाए। Even Jesus have seen the sacrificial heart that they are still sitting
sitting in the presence of God, forgetting everything and listening to His word. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके त्याग को, उनके बलिदान को देखा कि सब कुछ को त्यागते हुए, समय और भोजन को त्यागते हुए वो प्रभु के वचन को सुनने के लिए वो इतने ललायित थे। That was the reason when the disciples coming and telling that send them away, Jesus told, we have to do something for these people. और वो यही वो कारण है कि जब चेलों ने आकर के कहा प्रभु इन्हें विदा कीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें इनके लिए कुछ The करना है। another thing, the disciples' faith and obedience also contributed towards this miracle. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेलों का जो विश्वास और उनकी आज्ञा माना भी उनका एक योगदान था। If the disciples would have opposed, no Jesus, we cannot do anything, let them, you send them away, we won't help. I don't know what would have been the story there, or we would not have been maybe a story like this here. और हो सकता है अगर वहां पर जो चेले लोग उसका विरोध करते या इस प्रकार से कहते हैं कि हम इतने रोटी और मछली में से किस प्रकार से हम दे पाएंगे, तो हो सकता है मैं इस प्रकार से अनुमान लगाता हूं कि कहानी और ही कुछ बन पाती This है। evening through this message, the one thing I want to tell you और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, is to that God can do the miracles in our lives. और जो परमेश्वर हमारे जीवन में वो चमत्कार को कर सकता है, But somewhere we also need to do our part to have that miracles in our lives. लेकिन उस चमत्कार को पूरा होने के लिए हमारी ओर से भी कुछ न कुछ योगदान होना आवश्यक है। So we also have to some way help Jesus to provoke Jesus to have do the miracles in our lives. और उस चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने के लिए हमें भी हमारी ओर से कुछ न कुछ करना पड़ेगा। As this crowd, इस जैसे कि ये भीड़ ने, as these disciples, जैसे इन चेलों ने, when we were having such a long heart for God, और जैसे उस भीड़ के समान हमारे हृदय उसके प्रति होगा, when we were ready to do anything for God or take risk for God, और जब हम प्रभु के लिए कुछ करने के लिए या जो कुछ हम चुनौती लेने के लिए तैयार होते when we हैं, are even ready to sacrifice our pleasures for the presence of God, और जब हमारा जो कोई बहुमूल्य को हम प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए त्यागते when हैं, we are ready to believe and obey what even beyond our understanding, और हमारी कल्पना हमारी सोच से परे जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तब even we can see the miracles in our lives. उस समय भी हमारे जीवन में हम चमत्कार को In देख this सकते evening, हैं। shall we close our इस eyes? समय हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, Let us reflect on the message which came to us this evening. और इस शाम के समय में जो वचन है उसके और हम प्रकाश डालेंगे। I know it is a very familiar story to us. और हम जानते हैं कि हमारे लिए कहानी बहुत सुपरिचित है, I also know I didn't tell a very profound truth here. और मैंने कोई ज्यादा इतना गहराई वाली बात इसमें नहीं कही, But one thing why I selected this passage, one thing was questioning me. क्योंकि एक जो बात मेरे मन में जो प्रश्न डाल रही थी, इसलिए मैंने उस बात को आपके बीच में बांटी। In this situation of this lockdown, we are having lot of time. इस लॉकडाउन के समय में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय है, How much time we are giving to God and God's presence? और प्रभु की उपस्थिति में या प्रभु के लिए हम कितना समय हम लोग दे रहे हैं। That was the one thing provoked me to select this passage. और यही वो बात जो है मुझे प्रेरित किया इस संदेश को बांटने के लिए। How serious we are for God's presence and God's things in our lives. और प्रभु के बातों के लिए या प्रभु के लिए हम कितने गंभीर है हमारे जीवन में। Can we have a reflect on our lives? क्या हमारे जीवन के ऊपर हम प्रकाश डाल सकते हैं? But let me tell you one thing. लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, But if we are the people who are giving importance to God and God's presence, और अगर हम वो व्यक्ति है जो प्रभु को और प्रभु के वचन को अगर हम जो महत्व देते हैं, we can see the miracles after miracles in our lives. तो हम चमत्कार के बाद चमत्कार को हम हमारे जीवन में देख सकते हैं।